Okay, so today we'll start with chapter number 3 of history, which is applied history. Okay, we have seen what is historiography, that study of history or researching on history is known as historiography. Then historiography का इंडिया में क्या यूज है वो हम लोग ने सेकेंड चैप्टर में देखा. Now we will see what is applied history. Okay, what is applied history? Applied history is also known as public history. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefits of people in the contemporary and future times. Okay, that what is applied history? It is related to एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, कि जो हम हिस्ट्री का एप्लीकेशन कैसे करते हैं कहाँ पे हमारे डे टू डे लाइफ में, सो दैट हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर कंटेम्पररी एंड फ्यूचर times. Okay, knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solution to contemporary social issues and incorporate them in social planning. Knowledge of history is essential for the purpose, right? कि history का knowledge होना क्यों जरूरी है? Because it can provide us guidance. किसके लिए guidance? In finding solutions. तो कौन से solutions? अगर कोई issues है या कोई भी planning हमें करना है, so knowledge of history helps us in that case. ठीक है, कि अगर history का knowledge रहा तो अगर कोई social issue हमें past का solution उसका निकालना है या अगर मुझे कोई social planning करना है तो उसके लिए मुझे knowledge of history के history का knowledge होना काम आता है. That is why it is essential for the purpose. Now, the project and program related to applied history can create opportunities for people to participate along with technical experts. Their participation in the capacity of tourists visiting museums and ancient sites is also important. ठीक है, कि अब applied history से related अगर कोई project है या कोई प्रोग्राम चल रहा है तो दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज. किसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ पर्सन हु हैज इंटरेस्ट इन हिस्ट्री या हिस्ट्री से रिलेटेड चीजों में मुझे इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स रहेंगे या कोई प्रोजेक्ट्स होंगे तो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है मुझे कि मैं उसमें आई कैन टेक पार्ट एंड connect with some technical experts of social history. Their participation in the capacity of tourists visiting museums and ancient sites is also important. Tourism creates interest in history among people. They can volunteer to participate in the conservation and preservation project of their own city or town or village. ठीक है, कि ऐसे में अब अगर मुझे इंटरेस्ट है तो सिर्फ taking part into project and program won't help me much, because when I say history it has to relate it, like I need to go to that particular site, visit certain museums जहाँ से मुझे information मिले कि अगर मैं कोई structure के ऊपर study कर रही हूँ या research कर रही हूँ तो I need to visit that site. So all of these things is also important, and we know that tourism creates interest in history among people, right? कि tourism क्या करता है, एक हमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है बिकॉज हम कोई प्लेस को विजिट करते हैं तो उसका हिस्ट्री क्या है उससे हमें पता चलता है. अभी एक कोई प्लेस बहुत फेमस होगा, इट हैज अ हिस्ट्री रिलेटेड टू इट. सो टूरिज्म आल्सो क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल. दे कैन वॉलंटियर. अभी जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं, सपोज जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो क्या क्या कर सकते हैं, या तो वो वॉलंटियर कर सकते हैं ऐसे प्रोग्राम में, या प्रोजेक्ट्स है जो जहाँ पे हमने यहाँ पे ऊपर बात की कैसे अगर कोई प्रोग्राम है और प्रोजेक्ट है उसमें मैं पार्ट ले सकती हूँ, तो उसमें मैं कैसे पार्ट ले सकती हूँ. तो अगर वैसा कोई प्रोग्राम है तो आई कैन हेल्प देम टू वॉलंटियर, कि अगर कोई इफ दे नीड एनी वॉलंटियर्स आई कैन हेल्प देम और आई कैन बी द एक्टिव पार्टिसिपेंट. तो वो वॉलंटियर किस चीज में हो सकता है, या तो कोई प्रोजेक्ट है कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, कोई भी सिटी का, टाउन का या विलेज का, so that particular person can help. So what we have learned, what we have understood till now, that applied history क्या है बच्चा लोग, basically कि जो history है उसका application हम day to day life में कैसे कर सकते हैं, so
that it is beneficial for us, right? फिर हम लोग ने देखा कि हिस्ट्री का नॉलेज होना क्यों जरूरी है यहाँ पे, so that you can find solutions to any social issues or any problems, या अगर मुझे कोई सोशल प्लानिंग करनी है तो उसके लिए भी हिस्ट्री की नॉलेज मुझे हेल्प करती है। एंड ये पैराग्राफ में हम लोग ने देखा दैट इफ अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, इफ उनके लिए क्या क्या स्कोप है, तो दे कैन टेक पार्ट इन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम विद द टेक्निकल एक्सपर्ट्स, दे कैन विजिट म्यूजियम्स, दे कैन स्टडी एंशिएंट साइट्स, या उनके ऊपर वो लोग रिसर्च कर सकते हैं। वो लोग कैसे पार्ट ले सकते हैं ऐसे प्रोग्राम या प्रोजेक्ट में? दे कैन ईदर वॉलंटियर देमसेल्व्स और दे कैन एक्चुअली टेक पार्ट एज अ कंटेस्टेंट। समझा बच्चा लोग यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, Okay. miss. Okay. Applied history and research in various fields. History is about the past events. The way our present lifestyle is shaped is dependent on the historical chain of the event. Historical events relate to various fields like politics, social, and religious structure of a community, philosophy, technology, and science, etc. Right? कि अभी हमारा present lifestyle कैसा है वो बहुत इम्पोर्टेंटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो हमारी हिस्टोरिकल चेन की इवेंट्स है, राइट? कि हिस्ट्री में कैसे कैसे टाइप के डेवलपमेंट हुए, उस फेज को लेके आज हम हमारी प्रेजेंट लाइफस्टाइल तक पहुंचे हैं, राइट? तो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकती है? या तो वो पॉलिटिक्स हो सकती है, या तो वो सोशल रिलेटेड हिस्ट्री हो सकती है, मे बी इट कैन बी कम्युनिटी, इट कैन बी फिलोसफी, इट कैन बी इनटू एनी फील्ड। ओके, each of this field have their own history of building knowledge. The direction of future development in every field is dependent on the stage of available knowledge, right? तो ये हिस्ट्री जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी फील्ड में हो सकती है, तो कोई भी फील्ड की अपनी एक हिस्ट्री होती है, राइट? तभी ये वो फील्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, लाइक इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ साइंस, तो साइंस से रिलेटेड वी हैव हिस्ट्री, राइट? कि पहले कौन से टूल्स अवेलेबल थे जो आजकल मॉडर्न हो गए हैं। तो यू हैव हिस्ट्री रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट कैसे पता चलता है? तो उस टाइम पे जो अवेलेबल नॉलेज उनके पास है या जो अवेलेबल मटेरियल है उसको वो लोग कैसे डेवलप करेंगे, इससे हमें पता चलता है दैट व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर development, and hence the method of history can prove to be value in the research of various fields. and इसीलिए बच्चा लोग हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये सारे फील्ड्स जो हमने बात की है उसमें हर एक चीज में यू हैव हिस्ट्री, एंड अगर आप उसके ऊपर रिसर्च करो तो आपको वो आगे काम आता है। तो ऐसी कौन कौन सी फील्ड है? सो फर्स्ट फील्ड इज फिलोसॉफी, ठीक है? The history of philosophy helps us in understanding the origin of various ideologies, the intellectual tradition giving rise to those ideologies, and the historical development. Philosophy needs language as a medium of expression. In order to understand the philosophical expression, knowledge of the history of language prove useful. ठीक है कि philosophy में कैसे help करती है? तो जो हमारे आइडियाज है या जो बेसिक लॉज है, लॉज तो नहीं होते बट वी हैव आइडियाज, राइट? इन फिलोसॉफी तो वो आइडियाज कहाँ से आए हैं, उनका ओरिजिन क्या है, वो हमें कब पता चलता है? अगर मैं फिलोसॉफी का रिसर्च करूँ, फिलोसॉफी जो सब्जेक्ट है या जो फील्ड है, अगर मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगी, तो रिसर्च करना ही क्या होता है? व्हेन यू आर लर्निंग और व्हेन यू आर फाइंडिंग इट्स हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड रिसर्च, राइट? तो फिलोसॉफी के फील्ड में अगर मैं रिसर्च करूँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि जो वेरियस आइडियोलॉजीज है उनका ओरिजिन कहाँ पे है। वैसे फिर जो हमारे ट्रेडिशंस है वो क्या क्या नई आइडियाज को ये करते हैं, न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं वैसे। एंड फिलोसॉफी नीड्स लैंग्वेज, राइट? हम फिलोसॉफी हम बोलते तो मतलब क्या, हम हमारे आइडियाज एक्सप्रेस करते, तो वो आइडियाज हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? थ्रू
language. So that is why philosophy needs language as a medium, and in order to understand that expression, that language, history has proved यूजफुल. क्यों? बिकॉज हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं, मतलब क्या हम रिसर्च करते हैं कि हमारी आइडियाज का ओरिजिन कहाँ कहाँ से है, ये ट्रेडिशंस कहाँ से राइज हुए, या ट्रेडिशंस को मैं आगे कैसे डेवलप करूँ. सो दैट इज व्हाई हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि हिस्ट्री का फिलोसॉफिकल फील्ड में कैसे यूज है. नाउ वी विल सी इनटू द फील्ड ऑफ साइंस. ठीक है, तो समझा बच्चा लोग यहाँ तक? एनी डाउट फिलोसॉफी में हिस्ट्री का कैसे यूज होता है? नो मैम. सॉरी, नो मिस, नो डाउट. नहीं समझा क्या? समझा. ओके ओके, फाइन. साइंस. नाउ साइंस के फील्ड में हाउ डज हिस्ट्री हेल्प्स, वो हम देखेंगे. या अप्लाइड हिस्ट्री, अप्लाइड मतलब क्या, कैसे मैं उसको अभी यूज कर सकूं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री वैसे. so science, the history of science helps in understanding the chronological order of scientific discoveries, inventions and theories, right? बच्चा लोग के साइंस के फील्ड में मुझे कैसे पता चलेगा? तो अगर मैं साइंस के फील्ड में हिस्ट्री, मतलब मैं साइंस का रिसर्च करूँ, तो मुझे पता चलेगा कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है, या कोई इन्वेंशंस किए गए हैं, या कोई थियोरीज लिखी गई है, कोई लॉ लिखा गया है, तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है. उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, मतलब कि ये इन्वेंशन कभी हुआ था या ये डिस्कवरी कभी हुआ था. वो मुझे कैसे पता चलता है? जब मैं साइंस का रिसर्च करती हूँ. It can also help to understand the cause effect chain that led to those discoveries and invention, right? कि मुझे उसका cause effect भी पता चल सकता है. Now what is cause effect? कि समझो अभी समझो 1915 में कोई लॉ हुआ पास, या कोई थियरी पास हुई साइंस की, तो जो 1915 है फॉर एग्जांपल, तो 1920 में कुछ नया लॉ पास हुआ रहेगा, तो वो क्या 15 वाले लॉ से रिलेटेड है, या कोई 15 वाली जो थियरी है, या 15 वाली जो डिस्कवरी है उससे रिलेटेड है, या तो दैट इज नोन एज कॉज इफेक्ट चेंज. कि वो काम नहीं किया क्या, इसके लिए मैंने उससे रिलेटेड या उसके आगे कुछ डेवलप करके 1920 में बना. So this is known as cause effect chain. You can connect to all the inventions and all the discoveries which have been taken place. It is said that need is the mother of invention. जैसे मैंने बताया कि अगर 1915 में जो मैंने डेवलप किया है थियोरी या डिस्कवरी, वो इतना काम नहीं करा के 1920 में उसका नीड ज्यादा हो गया, इसीलिए मैंने कुछ नया इन्वेंट किया. सो नीड, एज वी नो, is the mother of invention. Scientific discoveries, inventions are often the effect of human efforts to fulfill a need and also क्यूरियोसिटी, राइट? कि हमारे डिस्कवरीज, हमारे इन्वेंशंस क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए, या तो फिर जो मुझे क्यूरियोसिटी है कि अगर ये नहीं हुआ तो अगर ऐसा होता तो क्या होता. ये दो चीजों के लिए ही हमारी साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस काम आते हैं. These efforts are based on already available scientific knowledge. Knowledge of history of science helps in understanding the factors that facilitate a scientific discovery, invention and also its chronology. ठीक है, तो ये सारे efforts मुझे कब काम आते हैं? अभी ये मैंने कैसे पता करा? अभी 1920 में अगर मैंने कुछ इन्वेंट किया या मैंने कोई डिस्कवरी बनाई, तो वो मुझे कैसे, उसके लिए जो मैंने नॉलेज लगाया वो कहाँ से आया मेरे पास? तो वो ऑलरेडी अवेलेबल था. तो वो कैसे अवेलेबल हुआ? बिकॉज हमारे हमारे पास साइंस का हिस्ट्री है. वी हैव नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस, एंड दैट इज व्हाई इट हेल्प मी फॉर डूइंग व्हाट. It helped me in understanding the factors जो scientific discovery या invention से related थे, and also it helped me in chronology wise के मुझे पता चलता कि ये year में ये discovery हुआ है, तो मेरे पास इतनी knowledge है. ये year में ये यू कैन से ये डिस्कवरी हुआ या ये इन्वेंशन हुआ, तो आपको क्रोनोलॉजी भी पता चलती है. पता चला साइंस के फील्ड में हिस्ट्री कैसे यूज होता है.
all of you? Yes, ma'am. Okay. Technology. Now we will talk about technology. The history of technology helps us in understanding the changes and the cause in the field of agriculture production, commodity production, architecture, engineering, etc. Scientific discoveries or inventions and technological sorry advancement are mutually dependent on each other. ठीक है कि अभी टेक्नोलॉजी आई तो ये बहुत सारे फील्ड में आ सकती है. कौन कौन सी फील्ड के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या टेक्नोलॉजी वाइज डेवलपमेंट हुआ, या अगर कोई मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, कमोडिटी इज योर प्रोडक्ट, तो उसके प्रोडक्शन में कैसे आया, या आर्किटेक्चर. नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इफ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, तो पहले कैसे पीपल दे डिडंट लाइक फार्मर्स, दे डिडंट हैड मच वेपन्स या मच इंस्ट्रूमेंट्स के वो अपनी जो फील्ड में प्रोडक्शन है वो अच्छे से कर पाए, या जो खेती है वो अच्छे से कर पाए. बट नाउ इफ यू सी, they have lots of machines or such products which help them for easy production of things. तो that is known as technological development. तो यहाँ पे क्या है, देखो बच्चा, कि साइंटिफिक डिस्कवरीज जो हमने ऊपर पढ़े, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशन जो हमने साइंस में पढ़े, और ये टेक्निकल एडवांसमेंट, ये क्या होता है, दे गो hand in hand. Okay, they are mutually dependent on each other. Knowledge of science and technology was very important at every step, from making of stone tools to agriculture production and the evaluation of mankind. ठीक है, कि जैसे मैंने एग्जांपल अभी बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए पहले इतने मशीन्स नहीं होते थे. सी यहाँ पे लिखा है मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. तो कैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट साथ में चलता है. साइंटिफिक डिस्कवरीज मतलब क्या, अगर कोई इन्वेंशन हुआ या कोई लॉ बनाया गया, तो उससे मुझे पता चलता है कि ठीक है अभी मतलब इससे मैं अभी ये नॉलेज है, तो अभी मुझे पता चलता है कि ओके मैं इसको टेक्नोलॉजी वाइज कैसे यूज कर सकूं. कि मैं ऐसी कौन सी, लाइक वी आर टॉकिंग ओवर हियर अबाउट फार्मर्स, राइट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. तो उन्हें पता चलता है कि ओके अभी साइंस से क्या पता चला, क्या लॉ आया या क्या डिस्कवरीज आए, उसी से थ्रू मैं टेक्नोलॉजी कैसे मेरी वैसे स्ट्रॉन्ग बनाऊं कि मैं प्रोडक्शन, जो मेरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसमें अच्छे खासे टूल्स ला सकूं, अच्छे खासे मशीन्स ला सकूं. Later, the advancement of science promoted the mechanization of product. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology. यहाँ पे देखो क्या लिखा है बच्चा, it is necessary to know the history of technology, ठीक है, in order to understand the development of mechanization. अभी सपोज मार्केट में एक ऐसा मशीन है जो सपोज फार्मर्स को ग्रास काटने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते. तो ये क्या हो गया, ये हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई कि टेक्नोलॉजी है वैसी जो ग्रास काटने के लिए हेल्प करती है, बट मैं एक फार्मर हूँ और मुझे उसके बारे में पता ही नहीं, और मैं मशीन्स बनाती जा रही हूँ, इन्वेंशन करती जा रही हूँ, और मैं वापस वही मशीन बना रही हूँ, बट कोई उपयोगी, दैट इज ऑफ नो यूज, राइट, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी सच मशीन विच इज अवेलेबल इन द मार्केट. तो मैं कहाँ पे लैग हुई, आई वॉज लैगिंग बिकॉज आई डेंट न्यू दैट सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट. समझ रहे हो. So that is why knowing the history of technology and then developing knowing the history of scientific discoveries and then developing a technology, okay, then developing a machine into technology is therefore important. So that is why they say that scientific discoveries and technological advancement, yeah, technological production goes hand in hand. Samjha? All of you, did you get the concept? Yes, ma'am. Okay. Industry and commerce. Now we will see कि industry and commerce में history कैसे काम आती है.
The field of mutual social transaction expands with the growth of industry and trade. It also promotes continuous development of the network of cultural interaction. ठीक है कि म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन expands with the growth of industry and trade. कि जैसे इंडस्ट्री बढ़ा, ट्रेड बना बढ़ा, तो क्या बढ़ता है? सोशल ट्रांजैक्शन बढ़ता है. मतलब क्या? ट्रांजैक्शन इज exchange of money या exchange of goods, anything which is related to exchange means transaction. तो social transaction कब बढ़ता है? जब industry and trade में growth आता है. It also promotes continuous development of the network of cultural interactions. And इसी से क्या बढ़ता है? हमारा cultural interaction बढ़ता है. It is an integral part of the industrial and commercial management. It is essential to understand the history of these processes. The nature of the market and commerce has continued to change. Accordingly, the nature of human relationships and the social organization has also continued to change. To understand the development, it is necessary to study the history of culture, social organization and economic institutions. Right? कि अगर मुझे कहाँ पे मेरा ग्रोथ करना है, अगर मुझे इंडस्ट्री या कॉमर्स में मेरा ग्रोथ करना है, तो उससे रिलेटेड हिस्ट्री भी मुझे होना चाहिए. राइट? अगर आज आज मैं कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करती हूँ, तो जस्ट बाय स्टार्टिंग अ बिजनेस डजंट वर्क्स. राइट? आई नीड टू डू रिसर्च अबाउट इट. मुझे वो टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है. सपोज मुझे आज मेरा यूटेंसिल्स का हो गया या वायर्स का हो गया, सपोज मुझे एक बिजनेस खोलना है, पर मुझे वायर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. आई डोंट हैव या आई हैव नॉट डन एनी रिसर्च ऑन हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस or how to start a job or how to start a company in wires or utensils. Will I be able to develop a job? Yeah, will I be able to develop a शॉप? मैं खुद का शॉप बना पाऊंगी? नहीं, बिकॉज मुझे मेरे पास कुछ रिसर्च ही मैंने उसके ऊपर वो टॉपिक के ऊपर किया नहीं है, या वो टॉपिक को मैंने अच्छे से समझा ही नहीं है. सो दैट इज व्हाई दे से टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, अगर मुझे डेवलप करना है, अगर मुझे इंडस्ट्री और कॉमर्स में आगे मेरा प्रोग्रेस करना है, मुझे मेरा डेवलपमेंट करना है, तो इट इज नेसेसरी कि मुझे वो चीज के बारे में हिस्ट्री पता हो, वो टॉपिक का रिसर्च मैंने किया हो. इफ आई हैव डन इट, देन ओनली आई कैन सक्सीड इन अ प्रॉपर वे. क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. Okay. yes. Okay. Management studies. Management studies. In order to understand various factors which are involved in the chain of production, such as means of production, human resources, and processes of production, as well as the chain of market and sales management, etc., it is essential to have a knowledge of similar function system of the पास. ठीक है, यही एग्जाम्पल देखो, यही यहाँ पे बताया है. पहले बता रहे थे हम, पहले वी वर टॉकिंग इन कंसिडरेशन और इन अकाउंट विद इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, बट नाउ यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट स्टडीज का. बट चीज वही बताई है कि अगर मुझे प्रोडक्शन में, मतलब क्या, वही एग्जाम्पल ले लो कि अगर मुझे किस चीज का प्रोडक्शन करना है, लाइक इफ आई वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, अगर मुझे कोई चीज का प्रोडक्शन करना है या ह्यूमन रिसोर्सेस में करना है, तो उस चीज का नॉलेज होना मुझे जरूरी है. इफ आई डोंट हैव नॉलेज, then also it's fine, but it is essential to have a knowledge of similar function system. कि मेरे जैसे अगर मार्केट में और कोई लोग है, तो वो लोग कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उसका नॉलेज होना मुझे जरूरी है. सो बेसिकली इट्स नॉट लाइक हिस्ट्री हेल्प्स ओनली इन हिस्ट्री. यू विल सी, यहाँ पे हम देख रहे हैं राइट कि बाकी की फील्ड में भी कैसे हिस्ट्री काम आती है. अगर मैं आज ज्वेलरी का, समझो मुझे ज्वेलरी का बिजनेस करना है, एंड मैंने अच्छे से रिसर्च किया कि बाकी सारे मेरे जो ज्वेलरी के शॉपकीपर्स है उनका प्राइस क्या है, बाकी मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, ये लोग कहाँ से लाते हैं, एंड एवरीथिंग. लाइक इफ आई कीप रिसर्चिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, या मैं सारे जो मेरे मार्केट में जो दूसरे सारे जो ज्वेलरी ओनर्स है, अगर मैं उनके बारे में सारा उनका सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, हाउ डू दे वर्क, अगर मैं ये सारा नॉलेज निकाल लूं, देन ओनली आई कैन बी अ प्रॉपर ज्वेलरी
ओनर, राइट, कि मैं सॉरी ज्वेलरी बेचने वाली, मतलब वैसे. सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. सी दे हैव सेड दैट ओनली, दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर, अगर आपको प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन का प्रोसेस, ये सारा कैसे होता है, सेल्स मैनेजमेंट, मार्केट, ये सारे में अगर आपको इन्वॉल्व होना है, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, टू हैव अ नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शन सिस्टम, के आपके साथ जो वैसे जो वही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो उसको वो फंक्शन कैसे करते हैं, उसका नॉलेज होना जरूरी है. It is essential to understand the psychological character of people working at various levels in the chain of production and marketing for healthy management. In order to achieve it, understanding of the social and economic institutes that support the industrial and commercial process is that important. Knowledge of history in this regard makes the management much easier, right? कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने हिस्ट्री का नॉलेज, वो टॉपिक के ऊपर रिसर्च नहीं किया और मैं स्टार्ट किया, तो इट वोंट बी लाइक मैं मेरा कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. बट इफ आई डू द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, देन इट बिकम्स वे इजियर टू मी देन अदर पीपल. सो यहाँ पे वही बताया है कि या तो आप फंक्शन, जो बाकी के सारे सिमिलर फंक्शंस है, लाइक बाकी के सारे जो बाकी के लोग हैं, वो लोग कैसे फंक्शन करते हैं, वो आप समझो, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा. या कोई इंस्टीट्यूट है जो उसके ऊपर आपको गाइडेंस देती है, उस चीजों से रिलेटेड गाइडेंस देती है, या वो चीज कैसे होती है, वो पूरा प्रोसेस आपको बताती है, तो आप वो इंस्टीट्यूट को आप ये करो, आप उनके पास से इंफॉर्मेशन निकालो, सो दैट इट बिकम्स इजियर. यहाँ पे वही लिखा है, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल इजियर. ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो ये है प्रोसेस है कि आपको कैसे मैनेज करना है, वो क्या हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा. आर्ट्स, आर्ट्स, Keaton, please mute yourself. Yeah. Arts. It is important to understand the development of various art forms with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural traditions. The key to the expression in any art form, emotional temperament of the artist, and the development history of the respective art form can be understood with the help of cultural history. कभी आर्ट्स में कैसे लोग काम आता है बच्चा लोग, हिस्ट्री, कि हमें वो आर्ट फॉर्म कैसे डेवलप हुआ है, या वो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, उसका फाउंडेशन क्या है, कि स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ से आया, वो सब हमें किससे पता चलता है, अगर हम आर्ट्स में रिसर्च करते हैं या आर्ट्स का हिस्ट्री पढ़ते हैं. सी यहाँ पे वही लिखा है, द की टू द एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म, कि वो आर्ट फॉर्म कहाँ से आया, वो आर्टिस्ट को वो नॉलेज कहाँ से है, वो आपको कब पता चलेगा, जब आप उस हिस्ट्री को समझोगे, उस हिस्ट्री के बारे में, वो टॉपिक के हिस्ट्री के बारे में आप रिसर्च करोगे. ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज अभी इसमें बहुत सारे फील्ड आ जाते हैं. इट इंक्लूड्स डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, आर्कियोलॉजी एक्सेट्रा. ओके, तो ह्यूमैनिटी एक अपने फील्ड में ही बहुत सारे डिसिप्लिन्स मतलब क्या, बहुत सारे पार्ट्स या बहुत सारे डिविजन्स आ जाते हैं. तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन्स, के ये डिसिप्लिन्स का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया, इसका हिस्ट्री करना आपको इम्पोर्टेंट होता है. All disciplines are supposed to have their origin in philosophy. Ancient people all over the world try to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence. ठीक है, कि ancient people क्या करते थे, वो सब जगह जाके ये टॉपिक के बारे में समझते थे. क्यों? बिकॉज उनको समझना था कि यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का रिसर्च क्या है, मतलब ये कहाँ से आया, कैसे फॉर्म
फॉर्म हुआ वैसे. सो इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज. ओके, एंड जब वो लोग इस चीज के बारे में सोचने गए या रिसर्च करने गए तो क्या हुआ, उनको बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज मिले किससे रिलेटेड. कोई बोलता है कि कैसे ओरिजिन हुआ वर्ल्ड में, कोई बोलता है यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, कोई बोलता है ह्यूमन लाइफ कैसे बना, गॉड्स थे, गॉडेस थे, वेरियस रिचुअल्स थे. तो ये सारी चीजें किसमें बताई गई होती है, ये सारी फिलोसॉफिकल वे में एक्सप्लेन की गई होती है. तो इन सब के रूट्स क्या है, इन सब के रूट्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, जो हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उनमें हमें मिलते हैं. पर ये सब अभी हमारे पास कैसे अवेलेबल है, बिकॉज people try to understand the relation between human and universe. ठीक है, तो जब वो लोग जाके रिसर्च कर रहे थे तब जाके उन्हें ये सब चीजों के बारे में नॉलेज मिला. सो वेरियस डिसिप्लिन्स एंड द ह्यूमैनिटीज हैव थियोरेटिकल फाउंडेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन philosophical theories, and only historical knowledge can help us in understand these development stages. ठीक है, एंड अगर हम इनके बारे में रिसर्च करें या इनसे रिलेटेड जो हिस्टोरिकल नॉलेज है उसको पढ़े, तभी जाके हम ये चीजों में आगे डेवलपमेंट या आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, miss. ओके, Yes, miss. अभी ये जो अप्लाइड हिस्ट्री है और उसका अभी हमारे प्रेजेंट लाइफ से क्या इम्पोर्टेंस है या क्या कनेक्शन है वो देखते हैं. पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री, राइट. हमें हमेशा ये क्वेश्चन होता है, बच्चों को हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि मैम हिस्ट्री तो हो गया ना पास्ट में, अब हम क्यों पढ़े उसके बारे में, या क्या लॉजिक क्या है पहले का पढ़ने का. People have this question. So the answer to this question about the nature of applied history answer this question as well. The visible and invisible relics of the past exist in the present. We nurture some kind of curiosity, attraction towards them. We wish to know more about their history because they represent the creative thoughts and traditions of our ancestor, right. कि ये जो हमारे विजिबल या इनविजिबल रेलिक्स है जो पास्ट के है, वो अभी भी हमारे प्रेजेंट से कहीं ना कहीं पे जुड़े हुए हैं. सो हु कैन नर्चर इट, द पर्सन या पीपल हु हैव क्यूरियोसिटी या जिसको अट्रैक्शन है वो टॉपिक से, वो जाके उससे कनेक्ट करते हैं. एंड वो हम अभी तक हमने क्यों प्रिजर्व किया है, बिकॉज एक तो एक होता है कि वो हमारे थॉट्स और ट्रेडिशंस रिलेटेड है हमारे ancestors के through, and that is why we respect it. Why? Because it is our heritage. It helps in building our identity कि आज हम जो है वो उनके existence के वजह से या उनके origin के वजह से आज हम है. So that is why it helps us in building or identifying our identity. The history of our heritage links us with our origin. Hence it becomes necessary to preserve and conserve it for future, for our benefit as well as for our future generation. And that is why ये सारे जो knowledge होते हैं हम उनको क्यों preserve करके रखते हैं, so that it helps us also for our development. और अगर हमारी जो future generation आई तो उनके लिए भी वो important या beneficial होती है. Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and make it accessible to the people. तो अभी present life में कैसे important है जो applied history है वो किससे related है बच्चा, कि ये सारा जो हमारा heritage है, जो हमारा culture है, हम उसको preserve रखते हैं. क्यों? Because आज हम उसको practice कर सके and कल को हमारे future generation को भी वो accessible हो. Heritage management creates opportunities of employment. In brief, applied history can be described as understanding of our present. Heritage management creates opportunities of employment. In brief,
Applied history can be described as understanding of our present with the help of history and finding right decision for the benefit of future. के applied history में कैसे opportunities भी होती है, job opportunities भी होती है, अगर कोई heritage को manage करना है या कहाँ पे, जैसे हमने पहले देखा volunteer करना है, तो इसमें कैसे आपको एक employment opportunity भी है, एक job opportunity भी है कि इसके थ्रू आप earn भी कर सकते हो. तो in short अगर हम देखें तो अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए, किससे, विद द हेल्प ऑफ आवर हिस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ आवर पास्ट एंड फाइंडिंग राइट डायरेक्शन, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर. समझा यहाँ तक कि कैसे अप्लाइड हिस्ट्री और हमारे प्रेजेंट का कनेक्शन है? क्लियर है बच्चा लोग? Yes, miss. Okay, now please start joining again. The session will get